Okay. So any questions so far? अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया फर्स्ट सेशन में, उसके पहले कोई क्वेश्चंस है? Okay. So before we go deeper into the teachers aspect, I just wanted to share a few things. एक तो कुछ बुक्स आप जो टीचर्स के ऊपर पढ़ सकते हैं. There's one book called Tuesdays with Maury. More or less simple language है इस बुक की. Then there is another one called Toto Chan. What else do we have for teachers? So these two are okay. So these two are primarily good books for education to read, and then obviously you have a lot of other books that you can read. Things like On Education by Sri Aurobindo and Mother. Then you have any of the talks by Krishnamurti. एक और एक बहुत अच्छी बुक है, that is Letters by Krishnamurti to his schools. What else can you read? You can read a lot of stuff by John Holt. John Holt is another interesting author. तो उनके Escape from Childhood. Then you have The Underachieving School. These books, if you don't want to buy, you can also download them from Arvind Paranjpe's, no, not Arvind Paranjpe. Arvind Gupta's site. How many of you have heard this name, Arvind Gupta? I have heard it, but I am not able to recall it. Okay.
Yeah. So the moment you search for Arvind Gupta, you come across this site called arvindguptatoys.com. Arvind Gupta, also called as the Toy Man of India, he has written, sorry, he has written a lot of manuals, a lot of booklets where you can prepare toys from trash. Where you can prepare toys, scientific toys from trash. तो उसमें बहुत सारे कुछ है. यहाँ कुछ अवेलेबल है, कुछ फिल्म्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में टॉयज फ्रॉम ट्रैश के. सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल. ये कैसे बनाना. सो ये जो है अरविंद गुप्ते की साइट इज अ ट्रेजर फॉर एनी स्कूल. आप गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है कि ग्रांटेड स्कूल है, वेरेवर, दिस इज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर यू. तो इसका जो भी मटेरियल है, I am very sure that he will keep it posted for a long time. But if you don't want to wait for that long, तो सब डाउनलोड कर लो एंड सब सेव करके रखो आपके पास में. बुक्स में you have a lot of books which are available in different languages. तो उसके अरविंद गुप्ता के खुद के बहुत सारे बुक्स है, उसके खुद के बहुत सारे फिल्म्स है. Then besides that, you also have a lot of other books that he has got the rights for. बहुत सारे, जैसे जॉन होल्ट के भी बहुत सारे बुक्स है. फिर आई थिंक नहीं, शायद मॉन्टेसरी के नहीं है, because the Montessori people don't give rights that easily. Natural Conservation Foundation of Bangalore, इनके बहुत सारे बुक्स है. All these things are available with him. And सबके राइट्स उन्होंने लेके he has ये क्या बोलते हैं, translated them कि हिंदी में, मराठी में, multiple languages में. तो you have a lot of books here. Scientists के books है, books on science. I can just search and check if John Holt का कुछ है क्या उनके पास में. Yeah. So Life of John Holt, written by Arvind Gupta, is available. Besides that, रिचर्ड बाक का भी बुक है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल. जॉन ड्यूई की बुक्स है, इन्फ्लुएंस ऑन टर्किश एजुकेशन, recommendations for Turkish education. John Dewey is a very well known educationist. So ऐसे बहुत सारे बुक्स है उनके साइट पे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं. मूवीज है. So this is like a gold mine for you, for educators. And this is him. तो उनके YouTube पे भी काफी वीडियोस अवेलेबल है, बट you can download most of his stuff, so you don't have to depend on YouTube for that. So the reason why I discussed all this is because काफी बार अगर आपको कहीं ऐसी सिचुएशन लगती है कि you are at a loss, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके रिसोर्सेज अगर काफी नहीं हैं, तो अगर हम लोग दूसरे किसी की जिंदगी अगर देखते हैं तो उनके थॉट प्रोसेस से वी गेट इंट्रोड्यूस्ड टू देयर थॉट प्रोसेस. एंड एक बार उनका थॉट प्रोसेस पता चल गया तो उनके बुक में अगर सॉल्यूशन नहीं भी रहा, मगर उनका थॉट प्रोसेस ही आपका सॉल्यूशन बन के बाहर आ सकता है. सो उनके सोच विचार, थिंकिंग स्टाइल के हिसाब से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे. सो
that was the purpose behind introducing you to these materials. Obviously, there are a lot of books by Montessori also, but if you want to check why I didn't recommend them, you can check the prices. तो आपको पता चल जाएगा कि it's not really practical to just buy the entire set. तो एक एक करके साल में एक दो अगर आप खरीदते हैं वैसे करके अगर उनका सेट बिल्ड करते हैं तो that is fine. But it's not practical to buy the entire book set in one go. Besides this, if you want to learn a little more about say Sri Aurobindo or Krishnamurti, so Krishnamurti ka you can read commentaries on living. I'll put that in the chat box. तो ये 3 वॉल्यूम का सीरीज है. It's a slightly big series. Then you have Think on These Things. And for Sri Aurobindo and Mother, you can read integral education के जो books हैं उनके वो आप पढ़ सकते हैं. You can read books on the life of Sri Aurobindo and Mother. They are also available. So they how to know that they are genuine or not? तो कृष्णमूर्ति के इसमें सीधा सीधा लिखा है KFI. KFI कृष्णमूर्ति अगर ऐसे लिखा है या KFI फाउंडेशन ऐसे लिखा है तो यू नो कि वो जेन्युइन बुक है करके. जो पब्लिकेशन की आपको चाहिए वही पब्लिकेशन की है. एंड एज फार एज दिस इज कंसर्न द श्री अरविंदो आश्रम के जो बुक्स है उसमें जो श्री अरविंदो का सिंबल है दैट इज अ स्टार विथ द सी ऑफ आनंद एंड लोटस. वो जो सिंबल है उसका वो अगर रहा तो देन दैट मीन्स वो उनके पब्लिकेशन की बुक है. All right. So now coming back to this. So when we talk about teachers, तो हम लोगों ने देखा कि teachers are very powerful entities. When we started this course, तो we had discussed this question कि जब कोई कंट्री को कॉन्कर करने की कोशिश करता है, इन्वेड करने की कोशिश करता है, रूल करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला रास्ता उनका होता है टीचर्स. ठीक है, दीवार वगैरह सब कुछ ब्रीच कर दी उन्होंने. दे आर ऑलरेडी इन योर कंट्री एंड दे आर लूटिंग योर विलेजेस और व्हाटएवर. बट जब तक उस कंट्री के टीचर्स जिंदा है, जब तक उस कंट्री के टीचर्स एबल है एंड एक्सेसिबल है, तब तक के उस कंट्री का साहस खत्म नहीं होता, करेज खत्म नहीं होता, थिंकिंग खत्म नहीं होता. सो that is the soul of teacherhood. Being a teacher means that being the soul of a country. So to understand how this works, I can tell you a short story about Chanakya. So jab before Chanakya took on the role of Chanakya, he was known as Vishnugupta. और विष्णुगुप्त इस नाम से वो एक जो तक्षशिला में वो पढ़ते थे एंड वहाँ वो रहते थे. सो मगध का जब सिनेरियो उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में ये तो पक्का बैठ गया था कि मुझे पॉलिटिक्स में तो एंटर करना है एंड आई वांट टू चेंज हाउ टू रन दिस कंट्री. ये जो राज्य है इसमें बदलाव लाने की जरूरत तो है. बट वो एकेडमिकली पढ़ रहे थे एंड वो बदलाव लाने के लिए उनको एक स्पार्क की जरूरत थी, एक कारण की जरूरत थी कि ये बदलाव एक शिक्षक की ओर से क्यों और कैसे आना चाहिए.
तो व्हेन हिज किंगडम गॉट थ्रेटन्ड, उनका राज्य जब खतरे में आया पड़ा, उनका राज्य मतलब एजुकेशन, व्हेन ही रियलाइज्ड कि तक्षशिला के जो टीचर्स है उनको भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है थ्रू ग्रीक्स, थ्रू फॉरेन एंटिटीज, कि आप ये नहीं पढ़ा सकते हैं, ये पढ़ा सकते हैं, यहाँ ऐसे लोग यूनिवर्सिटी में आप नहीं रख सकते हैं। तो जब फॉरेन लोग ये डिक्टेट करना शुरू कर रहे थे in the field of education, in a temple of knowledge, in the kingdom of knowledge, तब उनको ये एहसास हुआ कि अभी समय आ गया है, क्योंकि इफ द नॉलेज ऑफ अ कंट्री, इफ द ब्रेन ऑफ अ कंट्री, इफ द सोल ऑफ अ कंट्री इज अंडर थ्रेट, तो देन उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो तब उन्होंने वो कदम उठाया, एंड देन वी नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो when we think about the rest of the story, we realize कि कहीं पर भी in any of the steps, in any of the incidents, in any of his activities, चाणक्य का कहीं पर भी खुद का मतलब नहीं था। He was never there for being known as the person who did this. To the point कि आज भी अगर हिस्टोरी आप पूछेंगे, people who have dug through history, पुराने लिटरेचर्स वगैरह पढ़ के बहुत चीजें उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, वो अभी भी बोलेंगे कि आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अगर देखेंगे, अगर आप किताबें देखेंगे, एंड जो भी जहां पर भी ये नाम के मेंशन है एंड सो ऑन, अभी भी इट इज नॉट क्लियर whether Kautilya, Vishnugupta and Chanakya, these three are the same person or not. अभी भी ये नहीं पता है कि जिस व्यक्ति ने अर्थशास्त्र लिखा, जो व्यक्ति तक्षशिला में था और जो व्यक्ति चंद्रगुप्त का मेंटर था, ये तीनों भी एक व्यक्ति है कि नहीं है, ये अभी भी श्योर नहीं, सर्टेन नहीं है। सो दैट वाज हिज काइंड ऑफ रोल, कि वो जब थे जहां थे वो उस रोल में थे। When he wanted to write अर्थशास्त्र, he was Kautilya. When he wanted to help Chandragupta become a leader of a country where the future was where the future was for the knowledge of the country and the prosperity of its peace and intellect and art and culture, तो तब वो चाणक्य थे। और उसके पहले जब वो सीख रहे थे तब वो विष्णुगुप्त थे। एंड एज आई सेड कि आज तक के पता नहीं है कि ये तीनों भी सेम व्यक्ति थे क्या नहीं थे। सो दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर, एंड ये रोल अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया है। अब इसे अगर वापस लाना है, इसका इंटेंसिटी, इसका स्ट्रेंथ, इसका डेप्थ अगर वापस लाना है, तो हम लोग को उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन प्लान्ड। कुछ चीजें हम लोग को अभी समझ में आएगी, कुछ अभी समझ में नहीं आएगी, कुछ अभी ऐसा लगेगा कि बहुत फायदेमंद है, और बाद में समझ में आएगा कि वी शुडंट हैव डन दैट। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, some of them being scholarships and incentives. तो जो शॉर्ट रन पे इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि जो अभी सिचुएशन है उसमें टीचर्स की जो वैल्यू है, टीचर्स का जो रिस्पेक्ट है, वो एक जगह पर है भी और एक जगह पर नहीं भी है।
सब लोग ये तो बोलते हैं कि आई हैव बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचर्स आई हैड। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो मेरे शिक्षक थे उनका बहुत गहरा प्रभाव है मेरे जिंदगी पर और मेरे जिंदगी जीने के माय लाइफस्टाइल बेसिकली। But at the same time, these are also the same people who are not inspired enough to come back and give back to what they got. तो मतलब कहीं तो कुछ तो मिसिंग है, there is something missing here कि in spite of being inspired by so many people and having their influence on their life and lifestyle, we are still not accepting that responsibility कि भाई I should also become a teacher or I should at least give back to that community or I should at least go back and do some work in that field. अगर मुझे बाहर जाके सीखना पड़ रहा है तो शायद मैंने कम से कम इतना तो काम करना चाहिए कि बाकी लोगों को बाहर न जाना पड़े। मेरे पास में तो पैसे थे इसलिए मैं बाहर गया, मगर जिनके पास में नहीं है उनका क्या? So and even the thought process के why should people go out for education? सीखने के लिए क्यों बाहर जाना चाहिए? It's like water, right? पानी के जैसा होता है education. If I have to walk 10 kilometers to get a bucket of water to drink, so that is a problem. So education also should be considered like that. So the various things that the government has planned are this. एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाएगी स्टूडेंट्स को, ताकि more and more people pick up the 4 years integrated B.Ed programs. तो पहली बात तो ये जो एक डर था कि 4 साल का B.Ed रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये इंटीग्रेटेड का मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ B.Ed कोर्स है ये। तो 4 साल अगर है तो 4 साल में आपका BA भी है, या 4 साल में आपका BCom भी है, या 4 साल में आपका BE भी है, whatever you want to learn उसके साथ में B.Ed है ये। That is how integrated programs work. तो इसके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, so more and more people do this course. उसी के साथ में प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन प्लान्ड। अब तक ऐसा प्रॉब्लम आता था कि स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स के जहाँ पर आपने एग्जाम दिए है, जहाँ पर आपने कोर्स दिया है, कोर्स किया है, एंड जहाँ आपका घर है, दैट मे बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वेयर यू आर प्लेस्ड। आपको जिस स्कूल में आपका जॉब मिलेगा, हो सकता है कि आप उनका कुछ रिलेशन नहीं है। लाइक आई मे बी फ्रॉम अमरावती एंड आई मे गेट प्लेस्ड इन से Kolhapur or something, but because that is how the vacancies and transfers these are managed. तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट रहेगा कि मैं अगर अमरावती का हूँ तो हो सके तो अमरावती के ही आसपास के जो स्कूल्स है, प्रेफरेबली वहीं पर मुझे टीचिंग का जॉब मिले। वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस इज लोकल एरिया रोल मॉडल्स। अगर किसी गांव का या किसी शहर का मेरिट स्टूडेंट टीचर बनकर उसी गांव में टीच करता है तो ऑटोमेटिकली वहां एक लूप तैयार हो जाता है रिस्पेक्ट का एंड फैन फॉलोइंग टाइप, या वो पीपल लुक अप टू दैट पर्सन एंड पीपल आल्सो लुक अप टू दैट डिसीजन एंड दैट रोल। तो इससे लोकल एरिया रोल मॉडल्स क्रिएट होंगे। साथ ही में इंसेंटिव्स विल बी पेड टू टीचर्स हु चूज टू गो इन रूरल एरियाज। जहां आपका सिटी है उसी के आसपास के जो रूरल एरियाज है, वहां पर आप अगर जाना चूज करेंगे तो आपको उसके इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स किस फॉर्म में? जहां पर पैसे दे सकते हैं तो वहां हाउसिंग अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे, और अगर हो सके तो स्कूल के आसपास में अगर हाउसिंग है तो सीधा घर ही दिया जाएगा कि इतने साल तक के, जब तक आप यहाँ टीच कर रहे हैं तब तक के ये घर आपका। सो
it's basically like a government employee के जैसे कमिश्नर्स वगैरह के क्वार्टर्स रहता है, उसी तरह से you will be given a house to stay in. The harmful practice of excessive teacher transfers कि कभी कुछ साल यहाँ है, कुछ साल वहाँ है, कोई भरोसा नहीं है कितने साल आप कहाँ काम करेंगे, वो रोक दिया जाएगा ताकि रोल मॉडल्स का सिस्टम डेवलप हो सके, ताकि एजुकेशनल एनवायरनमेंट्स डेवलप हो सके. यू इमेजिन के वारे सर गवर्नमेंट टीचर है, अगर वारे सर को अगर 2 साल इधर 2 साल उधर इस तरह से अगर काम करने कहा रहता एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते, तो वुड इट हैव बीन पॉसिबल टू डेवलप द वाबड़ेवाड़ी जिला परिषद स्कूल? और अगर करना भी रहता तो क्या जितने जितने जगह पर जाते उतने जगह पर उतने लेवल का चेंज आ सकता क्या? It is because he had the time to interact with people. It is because he had the time to influence his people, communicate with his people. तब जाके and consider them his people first of all. ये सब हुआ इसी के वजह से ये सारे चेंजेस आ सके. मगर जो टीचर मुश्किल से साल भर 2 साल अगर एक जगह पर रहता है, उनकी तो दे कैन नॉट परफॉर्म राइट, वो उतना बदलाव वहां पर नहीं ला सकते. सो दैट शुड स्टॉप. एंड जो ट्रांसफर्स होंगे वो भी एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम से होंगे विथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कि ये ऐसा है एंड इस हिसाब से ये ट्रांसफर हो रहा है. देन जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो कंटेंट और पेडागोजी दोनों को टेस्ट करेंगे. एंड ये जो टेस्ट होंगे ये चारों पांचों लेवल्स के अलग अलग होंगे. कॉलेज लेवल का अलग, सेकेंडरी लेवल का अलग, मिडिल का अलग, प्रिपरेटरी का अलग, फाउंडेशनल का अलग. सो अब तक जो वो मेंटालिटी थी कि लोग प्रमोट होते थे, अभी KG1 KG2 में पढ़ा रहे, पालनगर में पढ़ा रहे एंड उससे प्रमोट होके प्राइमरी टीचर्स बन रहे हैं. दिस विल गो अवे. अभी प्रमोशंस वर्टिकली होंगे. वर्टिकली मतलब जो पालनगर में है वो ही वहीं पर प्रमोशन पाएंगे, फिर वही प्रमोशन उसी क्लास में और आगे जाएंगे. फिर जो प्राइमरी टीचर्स है वो प्रमोट होके सेकेंडरी में नहीं जाएंगे, वो प्राइमरी के ही रोल में और प्रमोट होंगे. सो ये चारों रोल्स के जो प्रोग्रेशंस है ये अलग अलग किए जाएंगे. I'll just recount an example from the ashram schools. जो श्री अरविंदो आश्रम के जो schools है जैसे किंडरगार्टन वगैरह हो गए, तो वहाँ के जो सबसे एक्सपीरियंस्ड एंड सबसे माने जाने टीचर्स है, वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड जो टीचर्स है, दे आर द वंस हु रन द किंडरगार्टन. जो प्री स्कूल है वो रन करते हैं. जो स्लाइटली यंगर टीचर्स है जिनको एक्सपीरियंस अभी और उतना लेना बाकी है, वो लोग थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं. हम लोग उल्टा कंसिडर करते हैं. वी थिंक के ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बड़े बच्चों को पढ़ाने चाहिए. अरे बड़े बच्चे जो है दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ स्टडिंग, दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग देमसेल्व्स. It is the smaller children who need more experience. It is the smaller children, younger children who need more talented people, more critically balanced people. जो सबसे ज्यादा स्किल्ड टीचर्स है वो हरदम प्री स्कूल में रहने चाहिए. हम लोग हरदम उल्टा सोचते हैं. सो ये सारी चीजें ढंग से होनी चाहिए, इसलिए ये चारों लाइंस ही अलग कर दिए. अगर प्राइमरी या प्रिपरेटरी स्टेज वाले टीचर को अगर मिडिल में पढ़ाना है तो उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा. मिडिल वाले को अगर फाउंडेशनल में पढ़ाना है तो उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा. सेकेंडरी वाले को मिडिल में पढ़ाना है तो उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा. ये चारों के कोर्सेज ही अलग रहेंगे एंड दीज कोर्सेज विल हैव टू बी कंप्लीटेड इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम वन और द अदर. सब्जेक्ट टीचर्स के
और अलग अलग इवेल्यूएशन स्ट्रेटेजीज रहेंगे, एंड दे विल बी they will be included in the TET और NTA. तो ये जो TET और NTA पास होने के जो स्कोर्स है, मार्क्स है, whatever, these will be considered while selecting teachers for these subjects also. तो that is one. And then उसके साथ में एक क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन लेना जरूरी है. It will become compulsory to do a classroom demonstration along with an interview before selecting the teacher. तो ये दोनों तीनों चीजें इंटीग्रल पार्ट रहेंगे स्कूल टीचर्स के सिलेक्शन का एंड स्कूल टीचर के हायरिंग का. नाउ टीचर्स विल नॉट बी हायर्ड जस्ट टू स्कूल्स. टीचर्स कैन बी हायर्ड टू स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस. ऐसा हो सकता है कि मैं एज अ टीचर सिर्फ ये जिला परिषद स्कूल नंबर 36, ऐसा नहीं, आई वोंट बी हायर्ड लाइक दैट. I will be hired as the teacher for maybe पांडरकौड़ा. तो वहां पर जहां पर भी मैं अगर फिजिक्स टीचर हूं तो जहां पर भी फिजिक्स सिखाना है मुझे वहां जाना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है. अगर पांडरकौड़ा में 5 स्कूल्स है, एक प्राथमिक है, एक सेकेंडरी है, एक कॉलेज है, एक पालना घर है, तो आई विल बी हायर्ड टू द स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड वहां जहां जरूरत है मुझे उस तरह से वहां पर क्लासेस मिलेंगे एंड मुझे उस तरह से वहां पर क्लासेस लेने पड़ेंगे, बिकॉज आई विल बी हायर्ड फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस. इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एडवांटेज थोड़ा बहुत देख लिया था कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस रहने के कारण अलग अलग स्कूल्स के बीच में देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कि ये लोग यहाँ पर इनोवेटिव चीजें क्या कर रहे हैं, वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो अलग कैसे सोच रहे हैं, यहाँ पर जो टीचर्स है वो इतने छोटे बच्चों के साथ में किस तरह से डील कर रहे हैं. सो इतना सारा लर्निंग होता है. दैट इज व्हाई टीचर कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस. देन इंटरव्यू में और एक चीज जो टेस्ट की जाएगी इज द ईज विथ लोकल लैंग्वेज, कि वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उससे कितनी फेमिलियरिटी है. तो वन एग्जांपल इज सपोज इफ आई एम टीचिंग इन सम प्लेस एंड वहाँ का मुझे, ठीक है, आई नो मराठी, बट देन वहाँ की मराठी भी तो मुझे समझना जरूरी है, वहाँ कैसे बोली जाती है. At the same time, if I am living in a place which has a mixture of languages, जैसे कोंकणी, मालवणी, ऐसे 3-4 अगर रीजनल लैंग्वेजेस है, तो मुझे कम से कम वो सारे लैंग्वेजेस समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी चीजें भी चेक की जाएगी. देन नंबर ऑफ टीचर्स जो है ये सिलेक्ट किए जाएंगे. ये सिलेक्ट 2 तरह से किए जाएंगे. एक तो ये है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स को ये टीचर सिलेक्ट किए जाएंगे. सो इफ आई हैव एन आर्ट टीचर अगर मुझे मल्टीपल लेवल्स पे चाहिए एंड मल्टीपल स्कूल्स है वहाँ, बट फैकल्टी इतने नहीं है मेरे पास में, तो देन एक ही आर्ट टीचर पूरे स्कूल कॉम्प्लेक्स को रहेगा, मतलब वहीं का कॉलेज, वहीं का स्कूल, एवरीथिंग. सेम थिंग गोस फॉर फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, languages, depending on the requirement. Another thing, ये जो recruitments होंगे, they will be done through technology based comprehensive teacher requirement planning forecasting exercise. कुछ applications रहेंगे, कुछ data रहेगा, कुछ softwares रहेंगे, ये सब मिला के एक प्रेडिक्शन फॉर्म किया जाएगा कि पॉपुलेशन इतनी है, गांव की ग्रोथ इतनी है, डेवलपमेंट इतना है, इसके बेसिस पे नंबर ऑफ स्कूल्स आज इतने हैं, पॉसिबली नंबर ऑफ स्कूल्स कल इतने ग्रो होंगे एंड सो ऑन. तो इस सिचुएशन में मुझे आज कितने टीचर्स की जरूरत है, 5 साल बाद कितने टीचर्स की जरूरत हो सकती है, 10 साल बाद कितने टीचर्स की जरूरत हो सकती है, ये कैलकुलेट किया जाएगा. एंड हायरिंग प्रोसेस वगैरह भी उस तरह से डिजाइन रहेगा. एंड ऑब्वियसली
जहां ऐसे है कि जो डेटा है उससे थोड़ा सा हटके रियलिटी है, तो वहां पर वो चीजें मैनेज की जाएगी। Besides this, you will also have master instructors। तो आपके आसपास में गांव में अगर आपको पता है कि कोई लोहार है जिसके पास में बहुत ही अनोखी टेक्निक है टू मेक द मेटल प्योर और whatever, और टू वर्क विद द मेटल, तो उनको एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाया जाएगा फॉर मेटलर्जी। अगर वहां पर गोंद आर्ट के अगर कोई ट्राइबल है जो बहुत सालों से गोंद आर्ट कर रहे हैं, तो उनको वो सिखाने के लिए बुलाया जाएगा। वोकेशनल चीजें, मेटलर्जी वाज एन एग्जांपल ऑफ द वोकेशनल थिंग। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मुझे पता है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ दूसरों के बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर बिजनेस रन कोई और करता है, बट देन वो सिर्फ स्टार्ट करके देते हैं विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डेटा वगैरह। सो दिस इज एन एंटरप्रेन्योर जो इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड्स में अपना टैलेंट यूज कर सकते हैं। सो ऐसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन सब लोगों को एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और मास्टर इंस्ट्रक्टर्स इन फील्ड्स में कंसिडर करके इनवाइट किया जाएगा। Then the primary goal of overhauling the service environment and culture of schools will be to maximize the ability of teachers। टीचर को परफॉर्म करने के लिए, सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट तक परफॉर्म करने के लिए क्या लगता है? If I ask you this question, to be able to perform at your best, at your maximum, what will you need? आपको किन बातों की जरूरत पड़ेगी? Any 3-4 things that आपका 100% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपना इनपुट, मतलब फुल्ली इन्वॉल्व। आपका इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी? ओके, टेंडेंसी पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, बच्चों की टेंडेंसी पता होनी चाहिए। वो टेंडेंसी पता करने की चाहत आप में अगर नहीं है, तो वो चाहत लाने के लिए क्या लगेगा आपको? मोर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। मोर यूज ऑफ टीचिंग एड्स और मोर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स। अगर टीचर्स अवेलेबल कर देंगे स्टूडेंट्स को क्लास में, तो टीचर का रोल कम हो जाएगा। Okay, so this deviates a little bit from what the NEP is saying। NEP जो बोल रहा है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि टीचर्स को अगर हम लोग एक वाइब्रेंट, केयरिंग और इंक्लूसिव कम्युनिटी प्रोवाइड करें, तो देन टीचर्स की एबिलिटीज भी उभर के आएगी। व्हाट यू आर टेलिंग मी इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ इंडियन टीचर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड। कि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या फैसिलिटीज दी गई है, क्या करना है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे बदलाव ला सके ताकि यहाँ पर फैसिलिटीज इंप्रूव करने की लोगों में चाहत आए, या फिर हम लोग ही यहाँ की कंडीशन और फैसिलिटीज इंप्रूव कर दे या बदलाव ला सके। दिस इज द डिफरेंस। व्हाट द एनईपी सेज इज कि हम लोगों ने वो कंडीशन देना चाहिए ताकि टीचर्स मैक्सिमम आउटपुट दे सके। सो या सो दे से द एनईपी सेज कि एक वाइब्रेंट, केयरिंग और इंक्लूसिव कम्युनिटी रहनी चाहिए टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स और सपोर्ट स्टाफ की। वाइब्रेंट मतलब लाइवली, बहुत स्पिरिटेड और एनर्जेटिक और हरदम पूरे जोश के साथ में स्कूल में आना एंड सो ऑन। केयरिंग मतलब एक दूसरे के तरफ हम लोगों को हमदर्दी रहना, उसी के साथ साथ में एम्पैथी रहना एंड दूसरों को
समझना एंड उनकी मदद करना, ऑल दिस इज केयरिंग. इंक्लूसिव के irrespective of who you are, where you are from, कौन से कास्ट के है, कौन से कद के है, रंग क्या है हम लोगों का, वो सब दूर रखते हुए, कोई डिसेबल्ड है, कोई व्हीलचेयर में घूमता है, सब सब बाजू में रखते हुए एक कम्युनिटी, एक इंसानियत के तौर पर एक रिलेशनशिप बनाना, एक कम्युनिटी बनाना, ये दिस इज द एम. तो ये अलग अलग तरह से कैसे दिया जाएगा. तो एक फिजिकल इसमें अगर देखें हम लोग, तो सर्विस कंडीशंस सुधारे जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, टॉयलेट्स, वाटर, अट्रैक्टिव स्पेसेस फॉर वर्किंग एंड डिस्कशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइसेस, इंटरनेट, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल रिसोर्सेज. तो स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल रिसोर्सेज ये टीचर्स को भी अवेलेबल किए जाएंगे. मतलब अगर कोई टीचर, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते हैं या संस्कृत पढ़ाते हैं, मगर उनको अगर लगोरी खेलना है, उनको अगर फुटबॉल खेलना है, तो वो चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए. दिस वाज एन एनुअल इवेंट सह्याद्री में, जो जिस स्कूल में मैं था, कृष्णमूर्ति स्कूल में. तो वहां पर एक एनुअल इवेंट, या मेरे ख्याल से सेमी एनुअल, मतलब साल में 2 बार ऐसा एक इवेंट रहता था, जहां पर टीचर्स की फुटबॉल मैचेस होती थी, टीचर्स की आपस में फुटबॉल मैचेस होती थी. फिर ऐसे मैचेस होते थे जहां पर 10th स्टैंडर्ड टीचर्स के साथ में खेलते हैं, या 9th एंड 10th. तो जैसे हाफ टाइम रहता है, तो आधी मैच 10th स्टैंडर्ड के बच्चे टीचर्स के साथ में खेलेंगे, आधी मैच 9th स्टैंडर्ड के बच्चे टीचर्स के साथ में खेलेंगे. ऐसे करके मैचेस होते थे. फिर रिक्रिएशनल रिसोर्सेज, तो एक तो रिक्रिएशन, जैसे हम मूवीज की बात कर रहे थे, दैट इज अ रिक्रिएशन. फिर एंड रिमेंबर, रिक्रिएशन डजंट मीन एंटरटेनमेंट. Recreation doesn't mean meaningless enjoyment. Recreation, अगर आप ये शब्द देखेंगे, तो इट इज रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मतलब अपने आप को फिर से बनाना. तो अगर आप कुछ समय लेके, हम लोग बोलते हैं ना, टू गैदर आवरसेल्व्स, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिक्रिएशन. कुछ समय लेके कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जहां पर आपके एलिमेंट्स वापस आए आप में, एंड यू रिक्रिएट योरसेल्फ, आप वापस अपने आप को बना सको. सो इस तरह के रिसोर्सेज, इस तरह के एक्टिविटीज, माइंडफुलनेस हो गया, मेडिटेशन हो गया, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन. सो वापस जो कोर है इस चीज का, कि चिल्ड्रन के लिए एंड ऑब्वियसली टीचर्स के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए, it should be a safe, inclusive and effective learning environment. This is the core of it. So तो जहां ऐसे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में जरूरत पड़ी, तो वहां पर बहुत ही मैच्योर तरीके से ये सारे डिसीजंस लेने चाहिए कि कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किसकी क्या नीड्स है, उस हिसाब से हम लोग क्या मैच्योरिटी से डील करते हैं, ऑल दीज थिंग्स. So these kind of relationships should be built within the teacher, within the school complexes, and obviously the communities. के हर प्रिंसिपल को, हर प्रीमाइसेस के जो भी मैनेजमेंट कमिटी है, या फिर जो जहाँ का देखभाल करता है, whoever oversees things, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, उनको भी इतना अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए कि आई हैव टू वर्क विद अदर पीपल. जस्ट बिकॉज ये मेरी स्कूल है डजंट मीन कि ये मेरी दुकान है एंड मैं इसको दुकान के जैसा चलाऊं, या फिर ये मेरा
पावर एक्सर्ट करने का प्ले फील्ड है कि I can play around with the people here, I can play around with the children here. That is not so. As a principal, as a management committee, हम लोग का रोल ये रहेगा कि हम लोग अपने आसपास के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्कूल्स है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस है, उसके साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं. That will be at the center. So to prevent the large amounts of time spent currently by teachers on non-teaching activities, काफी बार ऐसा होता है कि स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, स्कूल में कुछ फैसिलिटीज बन रही है, कुछ बिल्डिंग टूट रही है, दीवार कोई अनस्टेबल है तो उसको तोड़ा जा रहा है, नई दीवार बनाई जा रही है. इन सब चीजों में टीचर्स को ओवरसी करना पड़ता था. वो चीज अवॉइड की जाएगी थ्रू इधर सपोर्ट स्टाफ और व्हाटएवर. किसी तरह से हम लोग उनको उसके बारे में उसको मैनेज करना पड़ेगा. सो टीचर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी ओवरसीइंग दीज थिंग्स. नहीं, नॉट सपोज्ड टू बी नहीं, नॉट नीडेड टू ओवरसी दीज थिंग्स. इसमें फर्क है. इफ अ टीचर इज सीइंग दीज थिंग्स फ्रॉम a point of view of responsibility, from a point of view of interest and curiosity, एंड उसमें अगर बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई आज का फिजिक्स क्लास, आज का साइंस क्लास हम लोग यहाँ लेंगे, लोग टॉयलेट कैसे बनाते हैं, उसकी प्लम्बिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखना, तो यस, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. बट ये सिचुएशन आना कि कोई दूसरा ध्यान नहीं रख रहा है इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है, कि कोई एक ईंट वगैरह ढेर से उठा के लेके चले जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. या फिर कोई काम आधे में करके छोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो उसके लिए टीचर को खड़े रहना पड़ रहा है. दैट शुडंट हैपन. To help ensure that schools have positive learning environments, the role expectations of principals and teachers will explicitly include developing a caring and inclusive culture at their schools. वापस caring, inclusive. Inclusive पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, caring पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है. ये इस तरह का वातावरण अगर स्कूल में रहा तो किसी को भी काम करने की इच्छा होगी, किसी को भी सीखने की इच्छा होगी. टीचर्स विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी. उनको और फ्रीडम दिया जाएगा खुद से काम करने का, खुद से अपने आप को इवेल्युएट करने का. टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग मैनर में, किस तरह से बच्चों से बात करना, किस तरह से क्लास को हैंडल करना. एंड सोशियो इमोशनल लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा, जहां पर स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. हरदम नॉर्मली हम लोग जो लर्निंग कंसिडर करते हैं तो यही कंसिडर करते हैं कि बच्चे आंसर दे पाए, राइट. तो हियर इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट. टीचर्स विल बी recognized for novel approaches to teaching that improve learning outcomes in the classrooms. अगर मैं अपने स्कूल में कुछ यूनिक चीजें कर रहा हूँ तो वो यूनिक चीजें शेयर भी होनी चाहिए. एंड इट शुड बी नोन टू एवरीवन कि अगर दूसरे किसी को ये चीजें अडॉप्ट करनी है कि मेरे क्लास में भी शायद काम में आ जाए, तो वो उतना फ्रीडम रहना चाहिए, उतना अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए. तो कोई अगर नई बातें कोई टीचर्स कर रहे हैं क्लासरूम में अपने, तो वो सब लोगों को पता रहना चाहिए. एंड इन दिस रिस्पेक्ट दिस मूवमेंट एक्चुअली हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. तो इज दीपाली मैम हियर? ओके, शी इज नॉट हियर. तो जो वारे सर उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो वारे सर बाकी बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग करीबन 2-3 साल पहले शुरू हो चुकी थी. एंड ही हेल्प्ड इन डेवलपिंग अ मॉडल ऑन हाउ ही डेवलप्ड हिज स्कूल. खुद की स्कूल उन्होंने किस तरह से डेवलप की, उसका एक मॉडल उन्होंने बनाना शुरू किया था. एंड दैट मॉडल इज नाउ इजीली अवेलेबल. If you can contact him or if you can contact Deepali ma'am, so you can get in touch and you can find out where that model is, where it is being applied. तो काफी स्कूल्स में वो मॉडल अप्लाई होके देखा जा रहा है कि वहां पर कुछ बदलाव आ रहे हैं क्या, कुछ फायदा हो रहा है क्या. So
इस तरह से जो भी टीचर्स, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी स्कूल मैनेजमेंट पीपल कुछ नई बातें कर रहे हैं अपने स्कूल में, कोई नई एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो शेयर की जाएगी। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज इन वेरियस फील्ड्स। तो एक तो प्रोफेशनल, ये शब्द को समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट, ये शब्द को समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेशन comes from the old word profess, where you have to which is also again which can be broken down into pro and fess. Fess means admit करना, कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि if you have made a mistake, fess up, मतलब कबूल करो। Pro means doing it actively and accepting it, ऐसे। So professional automatically becomes, अगर suppose I say कि I have joined an industry, तो when I say I have joined an industry, it means वहाँ का मैंने बहुत सोच समझ के विजन देखा है, मिशन देखा है। वो विजन और मिशन को मैं अग्री करता हूँ एंड मैं ये इनिशिएटिव लेता हूँ कि मैं एक्टिवली उस विजन और मिशन को आगे बढ़ाऊं। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। आज के दुनिया में हम लोग जब प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं तो हम लोग को दिमाग में क्या आता है? व्हेन समबडी सेज के एक्ट प्रोफेशनल, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? कि ये स्कूल के टीचर्स बहुत प्रोफेशनल हैं, मतलब क्या? Don't get emotional. Okay, don't get emotionally attached. What else? Emotionally attached or emotionally affected, both. What else? पर्सनल नहीं है, नॉट पर्सनल। अपने आप को उस सिचुएशन में, उस सर्कल में कंसिडर नहीं करते हैं। दे लुक एट थिंग्स एक्सटर्नली कि ये किसी और की प्रॉब्लम है। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। दे डोंट थिंक कि आइडियल क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ऐसे नहीं सोचते हैं वो लोग। क्या कर सकते हैं वो करेंगे। स्वाति मैम, आप कुछ बोल रहे थे? I think devoted to their duties. Okay, devoted to their duty in the sense the duty that is given to them or the duty of the organization. I am professional, तो मुझे जो काम दिया जाएगा वो मैं कर लूंगा। What else? Have you heard of the term professional attire? Yes, sir. What does that mean? I'll give you an example of a school. So in a particular school, the attire for teacher is saris of a particular color. Sometimes the management provides it also. यूनिफॉर्म रहना, फॉर्मल अटायर, सूट, जूते, टाई, कोट, ये सारी चीजें। सो सी व्हाट द वर्ड हैज बिकम। पहले प्रोफेशनलिज्म मतलब ये रहता था कि कुछ भी हो जाए, आई विल स्टिक टू द विजन एंड मिशन ऑफ द कम्युनिटी। फिर मुझे उसके लिए मेरे मैनेजर से भी लड़ना पड़े, मगर कंपनी या इंडस्ट्री के फ्यूचर का फ्यूचर मेरे दिमाग में सबसे पहले रहना चाहिए। दैट इज माई फर्स्ट ड्यूटी। दैट इज प्रोफेशनलिज्म।
वो छोड़ के आजकल प्रोफेशनलिज्म हैज बिकम के ऊपर वाले से ऊपर देख के नहीं बात करने का, नीचे देख के बात करने का. इट हैज बिकम रिस्पेक्टिंग योर मैनेजर्स, उसके हाँ में हाँ मिलाना, दिस इज प्रोफेशनलिज्म. कपड़े ढंग के पहनना, बाल ढंग से बनाना, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म. जितना काम बोला गया है उतना काम करना, ये प्रोफेशनलिज्म है. एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म क्या था और आज प्रोफेशनलिज्म क्या है? So when we talk about continuous professional development, we are not talking about this professionalism, आज के professionalism. We are talking about that professionalism जहां पर आपका टारगेट ये है कि जो ठाना गया है, what I agreed on when I joined this institute, when I joined this country's citizenship, when I joined this company, तो जो माना गया था, what I had professed, that to execute that, what do I need to do? वो सब करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? And automatically continuous professional development means वो करते आना चाहिए मुझे, इसलिए मुझ में क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए. सो उस तरह से टीचर्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे दीक्षा वगैरह हो गया, इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एटलीस्ट 50 hours of CPD opportunities every year must be completed. तो इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स रहेगा, न्यूमरेसी रहेगा, लिटरेसी के बारे में रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये जो नीचे का जो पार्ट है, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. सो एटलीस्ट 50 hours of CPD. एंड अगर सिर्फ टीचर्स का हुआ तो उसमें कुछ फायदा है क्या? मेरे स्कूल में सारे टीचर्स ट्रेन हो गए. इज दैट सफिशिएंट फॉर मी? No. Who else needs to be trained? Students. And Non-teaching staff. non-teaching staff and Parents. sorry, Parents. parents and Parents. Principal also. प्रिंसिपल ऑल्सो. अगर सिर्फ टीचर्स को सब स्किल्स वगैरह सब कुछ आ गया, मगर जैसे ही आप किसी स्टाफ मीटिंग में जाते हैं, वहां पर आप चीजें सामने रखते हैं और वो प्रिंसिपल ही अगर सब कुछ डिस्कार्ड कर देता है, तो देन क्या फायदा? सो द प्रिंसिपल ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रेन्ड. एंड उनको भी, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स को भी 50 hours or more of training must be done. Sir, can I share? Yes. सर, आपने जो अभी कहा वो हमेशा ही होता है सर. जैसे टीचर को ट्रेनिंग होते हैं उनके, और बाद में उस ट्रेनिंग का अगर स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन अगर करना हो, तो जो केंद्र प्रमुख रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता. और बाद में बाकी सब कहते ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसी चर्चा होती है सर, और वो सपोर्ट नहीं मिलता फिर. तो अब ये बदलाव आ गया सर 2 साल में, कि जो ट्रेनिंग टीचर को देते हैं, तो उसके बारे में जानकारी केंद्र प्रमुख और बाकी जो अधिकारी है, गट शिक्षण अधिकारी और प्रिंसिपल, इन सबको भी उसके बारे में बताया जाता है. सो इसका मतलब ऑलरेडी इस पर काम शुरू हो गया है. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि जो भी related parties है, stakeholders, we call it stakeholders, so all of them must be trained in these fields and in this manner.
सो इसी के साथ साथ में करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, तो ये दिस एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट आई विल ट्राई टू हाईलाइट द वेरियस पॉइंट्स हियर. सो based on the continuous professional development, based on peer reviews, attendance, commitment hours, ये सारी जो चीजें हैं, इसके बेसिस पे states and union territories are expected to first of all promote the teachers and appreciate the teachers. तो जो एक पहले कंसेप्ट रहता था कि ये 8 साल से यहाँ पर टीचर्स है तो अभी उसको प्रिंसिपल बना दो, दैट कंसेप्ट विल नो मोर बी रेलेवेंट. जो जिसका जैसे परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से लोग वहाँ के रोल्स लेंगे. तो वो सीनियर टीचर प्रिंसिपल बन रहा है, दैट कंसेप्ट विल गो अवे. मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर आएगा. अगेन हियर मेरिट बेस्ड डज नॉट मीन मार्क्स इन व्हाटएवर टेस्ट यू हैव टू गिव, बट मेरिट बेस्ड मीन्स आपके नोन कितने काम है कि आपने इतना सारा काम समाज में किया है, इतना सारा काम स्कूल में किया है. तो वो चीजें, उन चीजों पर ये सारी चीजें डिसाइड होगी. देन या सैलरी स्ट्रक्चर्स आल्सो विल डिपेंड ऑन दैट. देन करियर ग्रोथ का जैसा मैंने बोला था कि वर्टिकल करियर ग्रोथ होगी, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, ये सारी चीजें विद इन अ स्कूल स्टेज. तो मतलब फाउंडेशनल के लोग फाउंडेशनल में प्रमोट होंगे, प्रिपरेटरी लोग प्रिपरेटरी में प्रमोट होंगे, मिडल के लोग मिडल में प्रमोट होंगे और सेकेंडरी के लोग सेकेंडरी में प्रमोट होंगे. ऐसा नहीं है कि प्रिपरेटरी वाले प्रमोट होके मिडल में जा रहे हैं, मिडल वाले प्रमोट होके सेकेंडरी जा रहे हैं. तो दैट इज नॉट देयर. And that there is no career progression related incentive to move from being teachers in early stages to later stages. यहाँ clear cut mentioned है कि ऐसी कहीं पर भी मानसिकता नहीं रखनी है कि ये टीचर प्रमोट होके वहां जा रहा है, प्री प्राइमरी से प्राइमरी या whatever. अगर आपको फील्ड चेंज करनी है कि मुझे ऐसा समझ में आया है कि मेरा जो नेचर है, मेरे नेचर से इट डजंट सूट वेरी मच कि मैं बहुत छोटे बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करूं. मेरा जो नेचर है इट इज मोर सूटेड फॉर पीपल हु आर इन स्लाइटली हायर क्लासेस, जैसे 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड. तो मिडिल स्कूल हो गया, या हाँ मिडिल स्कूल हो गया. तो उस केस में आई हैव टू टेक अनदर एग्जाम, आई हैव टू टेक अनदर कोर्स, एंड उस कोर्स और उस एग्जाम के बेसिस पे आई विल बी एबल टू शिफ्ट, नॉट प्रमोट, शिफ्ट फ्रॉम फाउंडेशनल टू मिडल. तो इट्स लाइक सपोज मैंने इंजीनियरिंग की एंड इंजीनियरिंग करके मैं एक्सेंचर ज्वाइन हो गया. एक्सेंचर में मैं एसएपी कर रहा हूँ. वहां पर एसएपी करते करते मुझे समझ में आता है कि दिस इज नॉट माई कॉलिंग, मुझे आउट ऑफ प्लेस लग रहा है यहाँ. तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज एक्सेंचर में इंजीनियरिंग करते करते, मतलब सॉरी एसएपी करते करते, आई विल गो टू नाइट स्कूल. मैं थोड़ा सा पढ़ के लॉ वगैरह पढ़ के मैं लॉयर बन जाता हूँ, या लॉ वगैरह पढ़ के मैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में चले जाता हूँ कि किसी ने गाना बनाया है या आर्ट वर्क बनाया है तो उसको प्रोटेक्ट करना, कि किसी ने कॉपी नहीं करना चाहिए, जैसे अनु मलिक वगैरह. तो टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, इफ आई डिसाइड कि मुझे आईपीआर में जाना है, तो देन आई विल डू द लॉ कोर्स, I will specialize in IPR. Then I will give a proper notice to Accenture कि मेरा ये कोर्स हुआ है, मुझे यहाँ ढंग लग नहीं रहा है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ. So I give my letter, वहाँ नोटिस पीरियड खत्म करके I switch to a company जहाँ पर IPR का काम होता है. तो यहाँ पर मैं SAP से IPR में प्रमोट नहीं हो रहा हूँ. These are two different fields. And उसी तरह से this also will be looked at two different fields. Foundational will be different,
secondary will be different, middle will be different, and preparatory will be different. So here it is very clearly mentioned. तीन statements में अलग अलग तरह से उन्होंने mention किया है कि no stage will be considered more important than the other. Then जो promotion होगा तो वो किस तरह से होगा? So academic leadership in schools. Then you have BRCs, schools and school complexes. फिर CRC, फिर BITE, फिर DIET. तो ये सब चीजों में ये सब प्रमोशंस होंगे in relevant government departments. So you will become a leader in that field for that age group, for that category. Then professional standards for teachers. Okay, there has to be some kind of a standard setting. तो उसके लिए एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, बनाई जाएगी या बन रही है, शायद आई थिंक बन चुकी है, एंड दैट विल बी असेस्ड बाय थ्रू नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, एंड दिस विल बी अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल. तो ये बॉडीज है जो ये सब ख्याल रखेंगी, एंड ऑब्वियसली सब जगह पर throughout curriculum, pedagogy, teacher, everywhere, NCERT and SCERT will be involved. तो again performance appraisal भी इसमें include होगा. Then pre-service teacher education programs के before I start teaching किस तरह के programs रहेंगे. Then टीचर करियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के मैं बहुत साल से टीचिंग कर तो रहा हूं मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का स्टेप क्या है. शुड आई अप्लाई फॉर द एजुकेशन ऑफिस, शुड आई अप्लाई फॉर BRC, CRC, व्हाट एम आई गुड एट. तो उसके लिए वो प्रोग्राम्स रहेंगे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू. टेन्योर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सैलरी इंक्रीजेस, प्रमोशन, अदर रिकॉग्निशंस, वो सब भी रहेंगे. हाँ, very important, promotions and salary increases will not occur based on length of tenure or seniority. आप जितने साल कोई स्कूल में काम कर रहे हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है आपके सैलरी से. You can be the longest tenured teacher in your school and still have the lowest salary, क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया है तो आपको सैलरी और इंक्रीमेंट क्यों देगा कोई. सो प्रमोशन और जो सैलरी इंक्रीजेस है वो ओनली बेस्ड ऑन मेरिट रहेंगे कि आपने स्कूल में क्या किया है, क्या बदलाव लाया है, किसको इन्फ्लुएंस किया है, किस तरह से बदलाव लाया है, कहाँ प्रोग्रेस किया है, खुद का प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, आप खुद कुछ सीखे है कि नहीं सीखे है. सिर्फ ये सब चीजें देखी जाएगी, ना कि आपका एज, ना कि आपका आप कितने टिकते हैं किसी स्कूल में. दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड ये सारे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है इनको वापस 2030 में रिव्यू किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, एंड वहां से आगे हर 10 साल में वापस एक बार चेक किया जाएगा. देन स्पेशल एजुकेटर्स. तो स्पेशल एजुकेटर्स में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स रहेगी, एंड ये ट्रेनिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ के स्पेशल एजुकेशन जहाँ जहाँ जरूरत है, जिन लोगों को जरूरत है उनके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज, just because they are different. The courses for these special educators will also revolve around things like these special abilities, challenges. So right now we are talking about CWSM, children with special needs. तो जैसे कोई दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, क्रिपल्ड है, व्हील चेयर में घूमना पड़ता है, तो ऑल दीज थिंग्स उनके लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफी चेंजेस रहेंगे, उसी के साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज रहेंगे, एंड टू बी एबल टू cater to them properly.
just because somebody has dyslexia does not mean they are unable to learn. समझना जरूरी है कि डिसलेक्सिया मतलब क्या, उनको अगर सिखाना है तो कैसे सिखाना पड़ेगा, एंड उनके सिखाने के प्रोसेस में क्या क्या ऐसा स्पेशल है जो आप बाकी बच्चों को नहीं सिखा सकते, बट अ डिसलेक्सिक चाइल्ड कैन लर्न. तो ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करना, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर इन द कोर्स. देन अप्रोच टू टीचर एजुकेशन. तो यहाँ पर दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, द 4-year इंटीग्रेटेड बीएड. तो ये तो है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा जिसमें ऑलरेडी आपकी डिग्री भी इंक्लूड होगी. तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से तो भी बीएड करना पड़ रहा, फिर कहीं से तो भी आपको बाकी डिग्री करनी पड़ रही, बीए या व्हाटएवर. एक ही साल में, एक ही साथ में 4 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें आपके साथ में हो जाएगी. आपको बीए इन व्हाटएवर साइकोलॉजी या जो भी है वो भी हो जाएगा, उसी के साथ साथ में बीएड भी हो जाएगा विद इन दीज 4 years. दैट इज व्हाई इट इज एन इंटीग्रेटेड बीएड. तो वापस इसको भी 2030 तक लाने का प्लान है इन थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. तो देयर दे हैव टू ऑफर दीज डिग्रीज. नाउ just because this is a 4-year integrated course, it's not sensible to expect everyone to go through these 4 years. So इसीलिए 2-year बीएड प्रोग्राम्स भी रहेंगे. तो ये जो अफवाह फैल रही है कि 2-year बीएड प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है वगैरह, दिस इज अ रूमर, ऐसा नहीं है. बट हाँ, एंड इट विल बी ऑफर्ड बाय द सेम इंस्टीट्यूशंस. ओके, बट व्हाट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज कि आपको आपने वो टाइप की डिग्री पहले से करनी चाहिए जिसके ऊपर आप बीएड कर सको. सो फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बीकॉम बीएड करते हैं ये सोच के कि स्कूल में पढ़ाएंगे. स्कूल में आप बीकॉम बीएड पढ़ लेके क्या करेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? द ओनली रीजन यू हैव डन अ बीकॉम एंड बीएड इज बिकॉज यू डिसाइडेड टू डू सम डिग्री, क्योंकि आपको पेपर से ज्यादा प्रेम था, ना कि एजुकेशन से. If you really had some respect for education, if you really had some thought towards education, so you would not have done that. You have actively taken a step at wasting your own life. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीकॉम में कुछ नहीं सीखे, मगर इसका मतलब ये है कि आपका साइट क्लियर नहीं था. Now if your sight has become clear, it doesn't mean that you have lost out on that time. You may have wasted it, but you have to reinvest in the future. तो रीइन्वेस्ट करने के लिए आपको और थोड़ा सा समय डालना पड़ेगा, एंड बीए कोर्स करके या फिर ये इंटीग्रेटेड 4 years का कोर्स करके फिर आपको लाइन पे आना पड़ेगा. बीकॉम अगर आपको लेना है एंड टीचिंग फील्ड में जाना है तो द ओनली प्लेस यू कैन गो इज प्लेसेस वेयर कॉमर्स हैज टू बी टॉट. एंड उसमें सिर्फ बीकॉम का फायदा नहीं है, यू विल हैव टू डू एमकॉम. एंड हाँ, यू कैन टीच, मतलब आप बीकॉम करके भी आप पढ़ा सकते हैं, बट देन ज्यादा फायदा नहीं होगा उसका. सो टू बी मोर प्रोडक्टिव यू विल हैव टू फिनिश योर एमकॉम एंड देन जॉइन सम कॉलेज टू टीच कॉमर्स. स्कूल में आप टीच नहीं कर सकते. इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड इट विल बी अ वेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स टाइम. दिस इज इन द फ्यूचर. ये इस लेवल तक अगर हम लोग जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर काम आसान करने के लिए दिस 4 years इंटीग्रेटेड बीएड इज देयर. कि आपने अगर बीकॉम कर लिया है, फिर यू रियलाइज के आप गलत फील्ड में, जैसा मैंने एसएपी का एग्जांपल दिया था, उसी तरह से यू रियलाइज कि यू आर इन द रॉन्ग फील्ड. आपको कॉमर्स से कुछ लेना देना नहीं है. यू वांट टू टीच इन अ स्कूल. तो देन if you want to join this prestigious profession, तो एंड यहाँ पर प्रोफेशन का भी मतलब वही है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कंसिडरिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द कंट्री, कंसिडरिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द स्कूल. तो आपको अपने आप को री एजुकेट करना पड़ेगा एंड फिर आपको ये पोस्ट पिकअप करनी पड़ेगी. सो इसके लिए थोड़े फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है.
अगर आपने MSc कर लिया है एंड देन यू रियलाइज कि मुझे आई डोंट वांट टू डू रिसर्च, मुझे पढ़ाना है, तो देन MSc वाले को पूरे 4 साल का B.Ed नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है उससे सिर्फ 2 साल का, हो सकता है उससे सिर्फ 1 ईयर का भी प्रोग्राम करना पड़े। सो यू हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स फॉर B.Ed। तो ये दिस इज अ रूमर कि अगले साल से या व्हेनेवर सिर्फ 4 साल के B.Ed के कोर्सेज रहेंगे। हाँ, जो इंस्टीट्यूट्स B.Ed ऑफर कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भार है। दे हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू कीप दीज कोर्सेज रेडी ऑफ 2 years, ऑफ 1 year, ऑफ 4 years। तो उतनी उनको फैकल्टी भी रखनी पड़ेगी, उनकी ये सब चीजें उनको रेडी रखना पड़ेगा। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग वगैरह भी ऑप्शंस है, बट उसके लिए भी ऑल दीज criteria have to be met. All B.Ed programs will include training in time-tested as well as most recent techniques in pedagogy. Very important. अब तक ऐसा होता था कि एक बार B.Ed का कोर्स डेवलप हो गया, 50 साल तक के वही कोर्स रन कर रहे हैं। That will change. उनको up to date रहना पड़ेगा. They'll have to know what is currently being done. आरोही क्या कर रहा है, बाबड़ेवाड़ी क्या कर रहा है, धामापुर क्या कर रहा है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, औरोमीरा क्या कर रहा है, मिराम्बिका क्या कर रहा है। there is so much happening in education. There is one more book that I forgot. You have something called Summer Hill, and this is by A.S. नील। ये भी एक बुक है, डबल एल है कि सिंगल एल है, आई डोंट रिमेम्बर। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन रीड। सो ऐसे रेवोल्यूशनरी स्कूल्स क्या कर रहे हैं एंड व्हाई आर दे कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी, ये B.Ed में इंक्लूड करना जरूरी है। हम लोग अगर वही सीखते रहेंगे जो इतने सालों से सीखते आ रहे हैं, तो वापस वी आर गोइंग टू एंड अप विद द सेम सिस्टम। तो इसे चेंज करना जरूरी है। All B.Ed programs will emphasize the practice of the fundamental duties. That is Article 51A. Just because you are studying in a school does not mean that you are supposed to just become a professional. Now I mean the current meaning of professional. आजकल जो professional सोचते हैं हम लोग वो, it means that you are a part of this country and you are supposed to act like you are a part of this country. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसके लिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब उस एक्ट के पार्ट है, सॉरी आर्टिकल के पार्ट है। एंड ये सारे B.Ed में सिखाना जरूरी है, सीखना जरूरी है, ताकि these things are carried into the classroom. So environmental education will become an integral part of the school curriculum. Then there will be इसको छोड़ के, अब काफी बार ऐसा होता है कि कोर्स वगैरह कर लिया, मुझे क्या सिखाना है उस हिसाब से कर लिया, बट देन लोकल कॉन्टेक्स्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा है। If I am in a coastal region, तो local context क्या है? If I am in a landlocked region, जैसे अमरावती है, इसके आसपास में कोई समुंदर नहीं है, तो ऐसे जगह पर क्या डिफरेंसेस है? रेगिस्तान है, you are living in a if you are living in a desert place, if you are a teacher in a desert place, तो then what is the change there? तो उसके लिए there will be special shorter local teacher education programs जो BITE के थ्रू, DIET के थ्रू किए जाएंगे। तो अगेन लोकल जो एमिनेंट पीपल है वहाँ उनको एज मास्टर इंस्ट्रक्टर्स लिया जाएगा एंड देन ये सारे कोर्सेज किए जाएंगे। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स को भी लोकल मास्टर इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू कोर्सेज किए जाएंगे, उसी तरह से शॉर्टर कोर्सेज फॉर टीचर्स आल्सो विल बी अवेलेबल। देन अगेन उसको छोड़ के और पोस्ट B.Ed जो कोर्सेज है,
सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो these will be at multidisciplinary colleges and universities who want any specialized training के लीडरशिप और मैनेजमेंट पोजीशन में. जैसे MBA वगैरह करता है तो पूरा MBA ना करते हुए स्कूल में मैनेजमेंट रिलेटेड क्या स्किल्स रहनी चाहिए और क्या मैंने समझना चाहिए, जानना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. फिर okay, this part I think we have already included. NCERT will study, research, document, compile varied international pedagogical approaches. ये हम लोगों ने देखा था कि दुनिया के जो स्कूल्स है वहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं, उससे अपडेटेड रहना. सो बेसिकली एट एवरी लेवल रिसर्च जारी रहना चाहिए. टीचर लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, बीएड लेवल पर, डाइट लेवल पर, एवरी लेवल एवरीवन नीड्स टू कीप लर्निंग. कहीं पर भी हम लोग रुक नहीं सकते. By 2021, a new and comprehensive national curriculum framework for teacher education will be ready. ये I think this is still in progress. अभी तक के निकला नहीं है. But 2021 भी खत्म नहीं हुआ है. So maybe hopefully by the end of this year शायद आ जाए. तो NCTE Teacher Education, National Center for Teacher Education, sorry, National Council for Teacher Education, along with National Council for Education Research and Technology, ये मिल के निकालेगा. वापस even this document, like every other document, हर 5 से 10 साल में रिवाइज किया जाएगा एंड चेक किया जाएगा. In order to fully restore the integrity of teacher education system, stringent action will be taken against substandard standalone teacher education institutions. जहां पर भी लोग प्राइवेट बीएड कॉलेजेस वगैरह खोल के बैठे हैं बिजनेस के नाम पे एंड टीचर्स की फैक्ट्री लगा के रखी है, वो बंद कर दी जाएगी या फिर उनको हेवी पेनल्टीज या व्हाटएवर विल बी गिवन इफ देयर कोर्सेज आर सबस्टैंडर्ड. अगर वहां के कोर्सेज जो लेवल तक रहने चाहिए वो लेवल तक नहीं है तो मेजर एक्शन लिया जाएगा उन कोर्सेज के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग शटिंग देम डाउन इफ रिक्वायर्ड. ओके, सो ऐसे रैंडमली कोई भी बीएड करके नहीं आ जा सकता है. इट विल बी गिवन, इट विल बी समथिंग दैट इज दैट यू हैव टू वर्क फॉर. फिर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है. You have people from socio-economically disadvantaged groups. You have people from the people who are financially challenged or have some learning disabilities, LD जिसको हम लोग बोलते हैं. तो ये सारी चीजें होने के वजह से you may not be very effective in the class. तो कुछ ना कुछ करना चाहिए and we should work on this so that we can overcome this issue. साथ ही में सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सब भी कम होना चाहिए. तो a lot of work needs to be put in, a lot of effort needs to be put in. Any questions till now? I think it is pretty much straightforward. मुझे नहीं लगता यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ complicated है. They have mentioned it in multiple places. Same चीज़ों को बार बार दोहराया गया है क्योंकि वो चीज़ें इतनी important है, अहम है, तो इसलिए उसे अलग अलग तरीके से सेम चीज़ बोली गई है ताकि कहीं confusion ना हो. Now coming to the inclusiveness and equitability of education, we need to take a look at this. If we are all alike,
it might be convenient for the bureaucrat and the statistician, but it would be very dull and would lead to a very unprogressive society. अब अगर हम लोग सब एक जैसे रहते, कोई भेदभाव नहीं, कोई रिच पुअर नहीं, कुछ नहीं, सब एक जैसे है, एवरीबॉडी इज द सेम, तो जो स्टैटिस्टिशियन है, जो गिनती करता है एंड चीजें कैलकुलेट करता है, उसके लिए, एंड जो गवर्नमेंट का इंसान है, ब्यूरोक्रेट, उसे बहुत आसान है इन लोगों के साथ में डील करना उसके लिए। बट जो सोसाइटी है, समाज है, वो अनप्रोग्रेसिव रहेगी। वो समाज का लर्न करना, डेवलप होना, ये सब चीजें, दिस विल बी चैलेंज्ड, ये नहीं हो पाएगी। सो दिस इज अ कोट बाय बर्ट्रैंड रसल। तो टिपिकल जो बायसेस होते हैं, हम लोग जो एक दूसरे को देख के जो भेदभाव करते हैं, वो ये रीजन्स में होता है: एज, जेंडर, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, लैंग्वेज, कल्चर, ज्योग्राफी, कौन कहाँ रहता है, CWSN, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, एंड फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में जो एग्जांपल है, ग्लोबल वेल्थ पिरामिड ऑफ ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल पूरा, उसके हिसाब से 70% of the people have approximately 2.7 lakhs of total wealth. 21.3% of the people have 11.6 lakhs of total wealth. 7.9% of the people have around 39.7. Oh, no, 1 minute. There is some issue here. Just give me a second. नहीं, this global wealth pyramid is according to the levels of society. हम लोग जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, तो तो 70.1% of the people are in the lower class, 21.3% of the people are in the middle class, 7.9% of the people are in the upper middle class, and 0.7% of the world are in the elite class. तो ये लोग जो है, इसमें से 70.1% of the people, ये वो लोग हैं जो दुनिया का 2.7% of the wealth ओन करते हैं। 21.3% of the people वो है जो दुनिया का 11.6% of the wealth ओन करते हैं। 7.9% of the people of the world वो है जो दुनिया का 39.7% of the wealth ओन करते हैं। And 0.7% of the people of the world own 45.9% of the world का wealth। ये रेशियो समझ में आया? Yes. So this is how our financial or global wealth pyramid is today. तो इस बेसिस पर भी हम लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हार्मोन्स के बेसिस पे, आइडेंटिटी, सोसाइटी के बेसिस पे, वी हैव डिफरेंट वेज दैट वी लुक एट ईच अदर। एज, एनर्जी के हिसाब से कोई बहुत छोटे ही एज में ऐसा होता है जिनको बहुत एनर्जी रहती है, कुछ छोटे एज में ऐसे रहते हैं जिनको कम एनर्जी रहती है। ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ऑल डिफरेंट वेज वी डिस्क्रिमिनेट। कास्ट के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को। सो यहाँ पर जब पहली बार ये डिस्कस हुआ था तो ये वर्ण सिस्टम था, जाति सिस्टम नहीं था। आजकल जो कास्ट सिस्टम हम लोग बोलते हैं, दिस इज द जाति सिस्टम। तो ये पहले जब हुआ था तो ये जाति सिस्टम नहीं था। तो वन थिंग टू नोट हियर
कि 1983 में हम लोगों ने जो ये किया था, ये इतना पुराना है, प्राचीन है कि हम लोग अभी याद भी नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, मनुस्मृति से हुई थी कि उसके पहले से हुई थी, व्हाटएवर। बट 1983 में गार्डनर केम अप विद दिस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के म्यूजिकल और रिदमिक एक टाइप इंटेलिजेंस का रहता है, विजुअल अलग टाइप रहता है, वर्बल अलग टाइप रहता है, तो ये अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस रहते हैं। और हम लोगों ने उसी समय पे समझ लिया था कि इंटेलिजेंस के मल्टीपल टाइप्स रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एकेडमिकली अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी पे पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रिस्की पोजीशंस में जाना चाहते हैं एंड वो चीजें लेना चाहते हैं जहां पर थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, डेंजर हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो चीजें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो चीजें एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस रिलेटेड वगैरह, वो वैश्यस होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ वो चीजें करना चाहते हैं जो जहां पर उनको बहुत ज्यादा वेरिएशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है। सो मॉडर्न लेवल पे हम लोग अगर देखें तो ब्राह्मण वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, टीचर्स, दीज आर ब्राह्मण्स। क्षत्रिय वो लोग हैं जो लोग रिस्की डिसीजंस लेते हैं, रिस्की काम करते हैं। तो इंक्लूडिंग पीपल लाइक वॉरियर्स अगर हम लोग देखें तो उसमें ये सब लोग भी आ गए, पुलिस वगैरह भी आ गए, मिलिट्री के लोग आ गए, ट्रक ड्राइवर्स भी आ गए, बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो ऑल दीज पीपल आर इन दैट कैटेगरी। वैश्यस में वो लोग आए जो लोग बिजनेस और बिजनेस के तरीके, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, दीज आर ऑल वैश्यस। शूद्र में वो लोग आते हैं जो काम करते हैं, मतलब आज के जितने भी जॉब ओरिएंटेड लोग हैं जो हम लोग ढेरों से स्कूल से निकाल रहे हैं, वो सारे शूद्र है आज। जो आईटी कंपनी में सुबह से लेके शाम तक के, सुबह से लेके रात तक के काम करते हैं कंप्यूटर के सामने बैठ के, वो भी आज के शूद्र है। सो ये जो सोच थी जाति वाली, ये बहुत लेट आई है। वर्ण सिस्टम नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से था, तो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से दीज आर द प्रोफेशंस दैट वी हैव टुडे। एंड जिसको हम लोग अछूत बोलते हैं, वो लोग हैं जो आउटकास्ट है। आउटकास्ट का मतलब ये नहीं है कि जो इस क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होते। आउटकास्ट का मतलब वो लोग हैं जो जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से हम लोग उनको एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं मान सकते। किसी का मर्डर किया है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है, किडनैपिंग किया है, या फिर थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, करप्शन किया है, all these people are achoots. These are the people who are outcast. This is how the classification is supposed to work. हम लोगों ने उसे इस तरह से डिस्कार्ड कर दिया है कि दिस इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। रूट ऑफ प्रॉब्लम्स इज नॉट दिस। ये तो बहुत पहले किसी ने तो भी कुछ तो भी लिखा था कुछ सोच के। जिस तरह से हम लोग होरोस्कोप लिखते हैं, जिस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं, उसी तरह से somebody wrote this कि अगर हम लोग सोसाइटी को इस तरह से सोचे तो मैनेज करना आसान हो जाएगा। किसी की सोच है वो, बट इट इज द मेंटालिटी विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम। हम लोग की ये मेंटालिटी है कि वी वांट टू बी दिस 0.7%। ये टारगेट रहता है हम लोग का, टू ओन द 45.9% ऑफ द वर्ल्ड, ताकि बाकी लोगों के पास में 2.7% से भी कम हो। अगर ये हम लोग का मेंटालिटी है तो ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम आप डेवलप कर लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम डेवलप कर लो, वो मैनिपुलेट किया जा सकता है और वो बुरी नजर से देखा जा सकता है। नजर बुरी होती है, नियत बुरी हो सकती है, कोई सामान, कंसेप्ट, चीज बुरी नहीं हो सकती, और इंसान भी बुरा नहीं हो सकता है। We have to change the way we think, and that is where the equitability and the inclusion comes in. ये और कुछ फिगर्स है
there are approximately more than 264 million people globally जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं. There are more than 1 million cases per year in India of autism. There are more than 21 million cases in India with physical disability. And फाइनेंशियल फैक्टर तो हम लोगों ने देखा ही. डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्सिया एक ऐसी चीज है जो 5 बच्चों में से एक में नक्की है. फिर there are more than 85 million children who do not go to school due to financial stress. This is the financial factor. And हम लोगों का मिशन ये चलते आ रहा है कि इसको नाम क्या दिया जाए ताकि लोगों को गुस्सा ना आए. पहले फिजिकली चैलेंज था, फिर फिजिकली पहले क्रिपल्ड बोलते थे हम लोग, हैंडीकैप्ड बोलते थे. फिर इट टर्न्ड इनटू फिजिकल डिसेबिलिटी, फिर वो भी लोगों को पसंद नहीं आया. देन वी टर्न्ड इट इनटू फिजिकली चैलेंज, अब वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. तो हम लोगों ने उसको बहुत एक रोजी शब्द देके, रोजी फ्रेज देके हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट CWSM, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. जस्ट बिकॉज लोगों को ये शब्द और लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है. और लोग भी मतलब कौन? वो लोग जिनके पास में माइक है, जिनके पास में माइक्रोफोन है, जिनकी आवाज सुनाई देती है. जिन लोगों को सच में ये चीजों की जरूरत है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको क्या बुलाते हैं आप. उनको सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि उनके साथ में आप किस तरह से बर्ताव करते हैं. सो हम लोग जिस चीज को स्पेशल नीड्स बोलते हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, you look at these factors, you look at these numbers and you decide कि सच में वो उतना स्पेशल है क्या जितना हम लोग सोचते हैं, या हम लोग के जैसे ही है. Who knows, in this group we may have people who have something like this but कभी डिटेक्ट ही नहीं किया है क्योंकि कभी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया एंड हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं, तो कभी पता ही नहीं चला कि हम लोगों को भी शायद डिप्रेशन है, हम लोगों को भी शायद ऑटिज्म है. ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम होता है. We may be at some point of the spectrum, who knows. So this is something that we need to understand before we venture into this field. तो inclusiveness और equitability जो है, इसके लिए ये सारी चीजें, ये सारे फिगर्स समझना बहुत जरूरी है. And then we need to look at the picture. So education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर लोग हुसैन बोल्ट के जैसे, मोहम्मद अली के जैसे, स्टीफन हॉकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं. People who are on a chair and वो सिर्फ एक उंगली हिला सकते हैं. Do you all know who Stephen Hawking is? If you don't know, please search for him. Please read about his life. इस व्यक्ति ने एक उंगली से इतने बुक्स लिखे हैं जितने शायद हम लोगों ने पूरा फिट बॉडी के साथ में भी people have not written those many books just with one finger. So ऐसे लोग अपनी तुलना हुसैन बोल्ट के लोगों के जैसे लोगों से कर सकते हैं because of education. So education के थ्रू ये सारी चीजें एक लेवल पे आ जाती है. इसीलिए education needs to be inclusive and equitable. Inclusive मतलब हर किसी को एक्सेप्ट करना, not doing discrimination. This is inclusiveness. Equitable, जिसको जितनी मदद की जरूरत है उतनी मदद देना. And I mean it both ways. ऐसा नहीं कि अगर ये व्हील चेयर पे है
तो मैं एक ऐसा टीचर बन जाऊं जो सिर्फ ये टीचर को सिर्फ ये बच्चे को ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि उसके पास में व्हील चेयर है, इसको ज्यादा ध्यान की जरूरत है, इसलिए मैं पूरा ध्यान उसी को दूंगा. दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग. How much ever they need is how much ever they must be given. That is equitable. Then the education system must aim to benefit India's children so that no child loses an opportunity, equality of opportunity to learn and excel because of circumstances, birth or background. किसी के स्थिति, किसी के जन्म और किसी का बर्थ या बैकग्राउंड की वजह से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. While the Indian education system and successive government policies have made steady progress towards bringing gender and social category gaps in all levels of schools, मतलब ये gaps close करने की कोशिश की है, but फिर भी disparities है, and ये हम लोग देख सकते हैं, अपने ही आसपास में आजू-बाजू में देख सकते हैं. तो इन disparities को कैसे reduce किया जाए, इस पर ज़्यादा हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है. That does not mean that reservation is the solution. That does not mean that reservation is not the solution. हम लोग अगर हर चीज को अगर इस डुअल मेंटालिटी में डालते हैं कि ये या तो जवाब है या नहीं है, तो देन हम लोग कभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे. वी हैव टू लुक एट थिंग्स ऑन अ केस टू केस बेसिस, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन जेंडर आइडेंटिटीज. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये किस तरह के सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज अगर हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या क्या और कौन कौन आते हैं. तो जेंडर वाले लोग आते हैं, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज वाले आते हैं. सोशियो कल्चरल मीन्स जैसे ट्राइबल हो गए, सिटी के लोग हो गए, या व्हाटएवर हम लोग जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. ज्योग्राफिकल, विलेजेस से है, बड़े सिटीज से है, कहाँ से है. डिसेबिलिटीज, देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. सो ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट. हम लोगों ने ये भी देखा था कि फर्स्ट से 12th तक के किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस के वजह से कितने लोग ड्रॉप आउट होते हैं. सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन. इसी के साथ साथ में यू हैव दिस इशू ऑल्सो के जस्ट अ सेकेंड. ओके, हेलो. हाँ मैम, मैं सेशन में हूँ. या सो काफी बार ये जो दरार है, दिस डिफरेंस, इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द गैप. तो दिस ऑल्सो देयर इज वन वेरी नाइस वीडियो बाय वो जो एडम रूइंस एवरीथिंग जो मैंने शेयर किया था, उसी में और एक वीडियो है ऑन हाउ देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन यूएस. अफ्रीकन अमेरिकन मतलब वो अमेरिकन नहीं जो अफ्रीका में रहते थे और माइग्रेट हुए, वो अमेरिकन जो बहुत जनरेशन से अमेरिका में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेड उन्हें अफ्रीका से लाया गया था. तो अभी उनका अफ्रीकन से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इतने जनरेशन ऑलरेडी जा चुके हैं कि अभी उनको वहां की लैंग्वेजेस भी समझ में नहीं आती है, और वो देखने में भी दिखने में भी रंग उनका करीबन करीबन एक जैसा है, मगर फिर भी जो बोलने का तरीका है, जो बॉडी लैंग्वेज है एंड लुक है, शेप ऑफ फेस वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो गया है. मतलब इतना डिफरेंस आ गया है उसमें. मगर फिर भी वहाँ के जो वाइट्स है वो ब्लैक्स को बहुत अनजस्टली ट्रीट करते हैं. आई एम नॉट सेइंग ऑल, देयर आर गुड एंड बैड इन एवरीथिंग. तो अगेन नियत का सवाल है. सो वहाँ पर भी बहुत
स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिशियंस ने एंड जिनके पास में पावर है उन्होंने ये सारी चीजों को एक्सप्लॉइट किया है. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ऑटोमेटिकली जहां पर स्लेवरी था तो स्लेव कैंप्स अलग होते थे एंड बाकी की सिटी अलग होती थी. तो ऑलरेडी जो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, वो उस तरह से डिवाइडेड है कि एक एरिया हर शहर का, हर सिटी का, हर विलेज का ऐसा रहता है जहां पर काले लोग ज्यादा रहते हैं और गोरे लोग दूसरे एरिया में रहते हैं. सो बहुत सोच समझ के काफी स्टेट्स में जहां जहां वैसे पॉलिटिशियंस आए हैं जिनकी नियत ऐसी है, उन्होंने लैंड प्राइसेस जो काले लोग हैं उनके बढ़ा दिए. तो जो लोग रेंट पे रहते थे वो बेघर हो गए. जिन लोगों की प्रॉपर्टी थी, जो लोग खरीदते हैं वो बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्लैक लोगों का लैंड अगर एक्सपेंसिव है एंड वहां पर रहने वाले भी ब्लैक लोग हैं और लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लैक लोग ज्यादा क्राइम करते हैं, तो व्हाइट लोग ब्लैक लोगों की प्रॉपर्टी क्यों खरीदेंगे? पैसा तो व्हाइट लोगों के पास में है, खरीदने का पावर भी व्हाइट लोगों के पास में है. तो ब्लैक लोग की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते इवन दो इट इज मोर एक्सपेंसिव और प्राइसेस हाई है, और व्हाइट लोग खरीदना नहीं चाहते, इसलिए ब्लैक लोग जहां है वहां अटक गए. इसी के साथ साथ में क्योंकि वहां की प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा है, तो वहां के स्कूल्स जो है, स्कूल वहां खुलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको स्कूल के लिए लैंड खरीदना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उतना लैंड सैंक्शन करना पड़ेगा. प्रॉपर्टी के रेट अगर इतने हाई है तो वो कितना लैंड सैंक्शन करेंगे? तो वो छोटा सा लैंड सैंक्शन करते हैं. छोटा सा लैंड सैंक्शन करते हैं तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम रहता है, कमरे कम रहेंगे, लेबोरेटरी कम रहेंगी, फैसिलिटीज कम रहेंगी. तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें कम है, तो टीचर्स भी वहां ढंग के नहीं आते हैं. टीचर्स भी वैसे ही आते हैं जो सिर्फ वहीं के वहीं हैं, या जो वहां पढ़ा सके, जो वहां टिक सके. तो उनको टीचर्स भी ऐसे नहीं आते हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर सके, क्योंकि रिसोर्सेज है ही नहीं. रिसोर्सेज नहीं है तो वहां से स्टूडेंट्स वहां से तैयार होके वैसे नहीं आते जो हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई कर पाए, एलिट यूनिवर्सिटीज में क्वालिफाई कर पाए. इसलिए वहां के जो बच्चे हैं थोड़े बड़े होके या तो दुकानें वगैरह खोलते हैं या फिर लूट मार करते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं. क्रिमिनल्स बनते हैं तो वापस वहां के लैंड रेट्स बढ़ जाते हैं. क्रिमिनल्स बनते हैं तो वापस वहां पे इनसिक्योरिटी फैल जाती है. कैन यू सी द प्रॉब्लम? वो साइकिल से बाहर निकलना पॉसिबल है क्या? सो दिस इज द साइकिल वेयर विच वी आर वेरी क्लोज टू. हम इस साइकिल के बहुत करीब है एंड वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वेयर वी आर. हम लोग यहाँ पे कम से कम ये तो है कि आड़े टेढ़े रेट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के हिसाब से पूरी तरह से नहीं बढ़ते हैं. पब्लिक का थोड़ा बहुत तो भी कंट्रोल रहता है. एटलीस्ट दैट मच ऑफ डिफरेंस इज देयर. सो special courses will be designed to cater to these classes and preferably जो जिस कम्युनिटी के है उस तरह के उनको टीचर्स आएंगे. तो सपोज ट्राइबल कम्युनिटी का कोई है, वो बाहर जाके उसने इंजीनियरिंग किया है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, तो इट इज प्रेफरेबल एंड उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कि आप वापस आओ एंड वहां पर ये सब चीजें दो वापस टू द सोसाइटी, टू योर ट्राइब. तो इसके लिए पहले तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करना जरूरी है, उस बेसिस पर इसके सॉल्यूशंस निकालना जरूरी है. So while several programmatic interventions to uplift children from tribal communities are currently in place, अभी already बहुत सारे systems है, मगर special mechanisms need to be made to ensure that the children belonging to tribal communities receive the benefits of these interventions. काफी बार ऐसा होता है कि जो जिसकी कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी है,
वो उसके कम्युनिटी से अगर ऑलरेडी IAS बन चुका है या फिर उसके कम्युनिटी से वो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो वो दूसरे किसी को नहीं आने देते, खुद के ही कम्युनिटी से। सो पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी आर सप्रेसिंग देयर ओन कम्युनिटी, एंड उनके कम्युनिटी के लोगों को क्या लगता है कि ये रोल मॉडल है, मुझे इसके जैसा बनना है, और वो लड़ते किससे है? बाकी लोगों से। उनको ये नहीं समझ में आता है कि खुद के ही कम्युनिटी के लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, और हम लोगों को अपने हक की चीजें हक देने के बाद में भी क्यों नहीं मिल रही है। वी नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन. The policy also recognizes the importance of creating enabling mechanisms for providing CWSN or Divyang children with the same opportunities of obtaining quality education. तो जहां जहां हो सके opportunities देने की बात की गई है. The critical problems and recommendations regarding ECCE, foundational literacy and numeracy, access, enrollment, attendance discussed in chapters 1, 2, 3 पहले जो डिस्कस हुआ था, are particularly relevant and important for underrepresented and disadvantaged groups. तो ये सब रहना बहुत जरूरी है. सिंपल चीजें जैसे हॉस्पिटल का फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी लोगों को नहीं पता रहता है, कम से कम उतना तो आना चाहिए. तो इसको अलग अलग स्कॉलरशिप्स के थ्रू, कैश ट्रांसफर के थ्रू इंसेंटिवाइज किया जाएगा, साइकिल दे के, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करके, सो दैट कम से कम जोग्राफिकल रीजन से या फिर फाइनेंशियल रीजन से लोगों को प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए. और रिसर्च करना पड़ेगा कि SEDGs के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी. तो थिंग्स लाइक डिस्टेंस लर्निंग हो गया, 1-on-1 टीचर्स हो गया, ट्यूटर्स हो गया, पीयर ट्यूटरिंग हो गया. These things we have already discussed previously. Open schooling, all these things need to be taken into consideration. इन सब चीजों का एक्यूरेट डेटा आना चाहिए. एंड जहां पर ये ज्यादा प्रोपोर्शन में है, SEDG ज्यादा प्रोपोर्शन में है, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से लेबल करना चाहिए. एंड वहां पर उस हिसाब से काम होने चाहिए. तो इनको स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी दिए जाएंगे. जहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे उसी तरह से स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जाए, एम्पावर किया जाए. हर जगह पर डिसेबिलिटी वाले हो या व्हाटएवर, तो विमेन आर यूजुअली द मोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स बिकॉज ऑफ जनरेशंस ऑफ डिसइंटरेस्ट के. बहुत सालों से डिसाइड कर लिया है कि नहीं हम लोग सीख के क्या करेंगे, ऐसी सब मेंटालिटी की वजह से ये इंक्रीज होते जा रहा है. एंड उसी के साथ साथ में जो दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो लोग पीछे देख के ये बोलते हैं कि अरे देखो कितने पिछड़े लोग हैं. दिस इज सो आयरॉनिक. आप जहां पर हो, आप जिस सोशल स्टेटस पे हो एज विमेन, जिनको हम लोग मॉडर्न विमेन बोलते हैं, आप इसीलिए हो कि लोगों ने, किसी ने आपके वहां होने के लिए लड़ा है. आज अगर आप सोसाइटी में छोटे कपड़े पहन सकते हैं तो वो इसीलिए है बिकॉज somebody fought for your modernization, because somebody said कि नहीं, कपड़े shouldn't decide your status, कपड़े shouldn't decide your character. कोई उसके लिए लड़ा है इसलिए आप ये सब चीजें कर सकते हैं. बट आप ही पीछे देख के बोल रहे हैं कि पिछड़े लोग हैं. कोई साड़ी पहन के अगर जाता है तो उसे बोलता है कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है. These things need to be thought about, these things need to be understood, and these things need to be acted on. तभी जाके आगे जाके इस पर कुछ बदलाव आ सकते हैं. तो women education needs to be worked on like that, and हर लेवल पे
हैंडीकैप में मेन विमेन, इस तरह से हर लेवल पे इस पर काम करना चाहिए। जेंडर इंक्लूजन फंड का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, so that this problem can be addressed, especially for things like third gender, transgender and so on, जो अभी जेंडर स्पेक्ट्रम के बारे में समझ में आ रही है बातें। फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज wherever required, नवोदय विद्यालय वगैरह, ताकि ये सारी चीजें मिटिगेट हो सके, इन पर काम हो सके। Then education on rights of persons with disabilities, this also needs to be studied. And the work will be done by obviously the NCF being prepared by NCERT, and this part will also be given by the people with disabilities wala jo department hai. So if you notice, pretty much the same things are being repeated in multiple ways, so that there is no confusion and so that there is no gap or lacuna. मतलब कहीं पर भी किसी को ऐसे नहीं मिलना चाहिए, लूप होल नहीं मिलना चाहिए कि हम लोग इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। सेंसिटाइजेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। Education should be such that everybody develops acceptance, inclusiveness and sensitization towards these things. ओके, बिसाइड्स दिस एनसीसी के लिए भी प्रमोशन है कि जैसे पहले काफी स्कूल्स में एनसीसी रहता था, आजकल काफी कम सुनने में आता है, तो वापस दैट शुड बी गिवन प्रेफरेंस to the people who are good in things like maintaining calm in stressful situations, but people who are not very good in academics because of whatever reason, तो उनको ये सब चीजें परस्यू करने देना चाहिए। So basically you increase the spectrum के जो लोग जिस चीज में पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड और नैरो स्पेक्ट्रम, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। This is again another important part. So all scholarships and other opportunities and schemes available to students from SEDGs will be coordinated and announced by a single agency